Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important reports and indices monthly revision session for the NABARD Grade A Officer Exam 2025. So my dear friends, I hope that your preparations are really going well for your upcoming exam. And in this session, we are going to cover another very important topic, that is the reports and indices for the month of September 2025. So guys, the reports are again a very important part for our upcoming examination. That's why we have to ensure that we are covering these reports in a detailed manner, right? And that is why I am back with a very interesting session where we are going to cover the important reports and indices for the month of September 2025 for your phase 1 of the NABARD Grade A Officer exam. So I hope that I am audible and visible to all of you so that we can resume this particular session. So please give me a thumbs up in the chat box so that we can ensure that all the technicalities of this session are really good and we can proceed with the session. Okay. So guys, in this session, we are going to revise the reports and indices through the multiple choice questions which will be there in the examination, right? So let me tell you that this session is for those people who have already covered the reports, but they have not revised through MCQs. Like they all know the important data of the reports, but they have not practiced solving MCQs on the same. So this session is going to be very helpful for those aspirants. Apart from that, the people who have already covered the reports and indices and they have also practiced the MCQs, but these questions will be on some different lines. So whether you are able to identify the right answer or not from these questions, that will be very helpful. And the people who have not at all touched the reports of the September 2025, for these people also this session is going to be useful because you will get to understand that what kind of dimensions are the most important for your examination, right? So let's start the session. Good evening, Ravindra, Mika, Kavya and all other people who have joined us live today. Good evening to all the future NABARD officers. Let's start the session with the very first question. And the question is on the Index of Economic Freedom released by the Heritage Foundation. So my dear friends, whenever we cover any report, the first dimension is the releasing body. And here the releasing body has already been mentioned in the question itself. Now you have to identify here that which of the following are the parameters, are the broad pillars across which the economies are being assessed as a part of this report, that is Index of Economic Freedom, जो assess करती है countries को across its economic freedom, कि कितनी economically free है हमारी countries, economies around the world. तो चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, मार्केट ओपननेस एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. So which one of the following statements are right here? I can see in the chat box many people are opting for the option E, that is all of the above. So is it right or wrong? This is absolutely right. Option E, all of the above is the right answer. So the Index of Economic Freedom assesses the countries across the four broad pillars, that is rule of law, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड मार्केट ओपननेस. तो इन सभी पैरामीटर्स पर कंट्रीज को असेस किया जाता है. आई कैन सी हियर दैट मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर इन द चैट बॉक्स करेक्टली. गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट आप सभी की पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट है सेशन के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा ही प्रोडक्टिव ये सेशन आपके लिए होने वाला है. क्योंकि जो भी गलतियां हैं हमें इंश्योर करना है कि सेशन में हम कर ले, सो दैट अगर एग्जाम के अंदर गलती से भी गलती होती है तो वो आपका कर्सर तब भी सही आंसर पर जाना चाहिए. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम द सेम रिपोर्ट. एंड द क्वेश्चन इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बिलोंग टू द टॉप 5 परफॉर्मर्स. इसमें से कौन सी कंट्री है जो टॉप 5 परफॉर्मर्स में नहीं आती है ऑन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, Taiwan and China. So which one of the following countries are not the part of the top 5 performers as per the Index of Economic Freedom launched by Heritage Foundation? What is the name of that particular country? It is China, which is not in the top 5. You can see here the top 5 economies are Singapore, Switzerland, Ireland, Taiwan and Luxembourg. So these are the top 5 countries, SSITL. So these are the top 5 countries in the Index of Economic Freedom, which has been released by Heritage Foundation. These are the top 5 countries according to this report. And let me tell you here, as per the previous year examinations, as per the previous year exam trends, we have seen that nowadays they have started asking you about the top 5 performers. And now in order to answer this question, that which country is not one of the top 5 performer, you need to retain this information from exam point of view, that which are the top 5 performers. Then only you will be able to identify which is not among the top 5. राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस आई होप कि जिन्होंने रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा था
वो इस सेशन के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दे पाएंगे, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको पता चलेगा कि किस डायमेंशन पर वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कवर करनी चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं। With reference to the index of economic freedom, consider the following statements. So, my dear friends, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें 3 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करना है। पहला स्टेप है यहां पर, we need to identify the central topic of the question. What is the central topic here? The report index of economic freedom is the central topic. Moving on to the second dimension of this particular question, what is the second thing we need to do? We need to identify the demand of question. Now, what exactly we need to identify? We need to identify which statement is incorrect here. Now, the third thing is we are required to analyze these statements and try to identify the keywords and see whether they are mentioned correct or not. तो बारी बारी से यहाँ पर step by step हम चलेंगे, and all of you are requested to give me here that what exactly is the right answer. Yes, Jack, the class has just started. हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए अभी तक. You are on time. मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले आए, ओके। सो यहां पर आते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बताया गया कि व्हाट इज इंडियाज रैंक। अगर यह आपको पता है आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द 126th रैंक एंड द रिपोर्ट कैटेगराइजेस द कंट्री एज मोस्टली अनफ्री। तो इंडिया की कौन सी कैटेगरी में प्लेस किया गया? मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में, एंड इंडियाज रैंक इज 126। सो इज इंडियाज रैंक इज 126? प्लीज टेल मी हियर, is India's rank is 126? So India's rank is 128 here, not 126. That's why the statement is incorrect. Moving to the second statement, at the bottom position, that is 176th rank, it has been taken by North Korea. This is absolutely right. Third statement, average economic freedom score 1.1 points increase हुआ, reaching 59.7. Right, which shows a modest improvement. एक थोड़ी सी slight improvement हुई in the worldwide economic practices, but it's not a big movement, right? As per the previous year, this statement is right or wrong? This is absolutely right. Moving to the fourth statement, Argentina, position at the 124th position, registered largest decline. So guys, अगर आपने index of economic freedom को पढ़ा तो आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना जो है, it was the largest improver and not the largest decline has been seen in this particular report as per the Argentina. So that's why the fourth statement is incorrect. So what will be the right answer? Option A. I can see in the chat box everybody is giving me the right answer. Option A, 128 in the India's rank. Absolutely right. Option A is the right answer. बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इंडिया की रैंक 128 है, मोस्टली अनफ्री इंडिया की कैटेगरी है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 126 थी, और इस साल इंडिया की रैंक और डिक्लाइन हुई है टू 128, और इंडिया मोस्टली अनफ्री कैटेगरी के अंदर प्लेस्ड है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो वर्ल्ड भी आपका मोस्टली अनफ्री कैटेगरी के अंदर ही आता है दोस्तों, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने 4 ब्रॉड पैरामीटर्स पढ़े इस रिपोर्ट के। उसके बाद हमने कवर किया कि व्हाट आर द टॉप 5 परफॉर्मर्स हियर, दैट इज SSITL, ठीक है, ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं। और उसके बाद हमने कवर किया व्हाट इज इंडियाज रैंक। इंडियाज रैंक इज 128. द कंट्री विच इज एट द बॉटम, दैट इज नॉर्थ कोरिया, एंड द लार्जेस्ट इंप्रूवर हैज बीन डन बाय Argentina. And when it comes to India's category, it's mostly unfree, and world level category is also mostly unfree. और वर्ल्ड लेवल के स्कोर पर जो स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी गई वो थी 1.1 पॉइंट्स की, दैट इज इट बिकेम 59.7. एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर. सो वेल डन जैक, रविंद्र, काव्या, सोनिका, एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली रिपोर्ट की तरफ, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025. और ये रिपोर्ट दोस्तों हमें बताती है ट्रेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर साथ में काम करेंगे उनका रिलेशनशिप कैसा होगा और वो क्या चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है. सो ये रिपोर्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. अगेन सेम स्टेप यूज करेंगे हम, 3 स्टेप फॉर्मूला. पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल टॉपिक, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज गिवन. Second thing is demand of the question. We need to identify correct statement. Third thing is analyzing the keywords. अब आपको identify करना है that which one of the following keywords which are mentioned in this statements are correct or not. तो पहला statement देखिए दोस्तों, फटाफट से go through कीजिए statements को. World Trade Organization simulations indicate that by 2040 जो AI है, AI will increase the global trade. अब कितना trade increase करेगा? 34 to 37%. This fact is right or wrong? This is absolutely right. Second statement,
Advancements in the AI development and deployment have the potential to raise the global GDP. देखिए दोस्तों, आजकल जब से हमने AI का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारी एफिशिएंसीज कहीं ना कहीं बढ़ी है और पहले से काफी बेहतर हुई है। तो इससे क्या होगा, जीडीपी में भी इंप्रूवमेंट आएगी, राइट? GDP will also improve. So वो कितना improve करेगा? 12 to 13%, which is also correct. Third statement is the number of economies which are having at least one AI related intellectual property. दोस्तों पहले क्या होता था कि AI जब अभी आया है तो सारी कंट्रीज के पास अपनी पॉलिसी नहीं है, बट एटलीस्ट वन पॉलिसी अ कंट्री इज हैविंग। तो ऐसी कितनी कंट्रीज है? पहले 41 थी 2017 में, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 140 in 2024. नाउ दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? दिस इज एब्सोल्युटली राइट. फोर्थ स्टेटमेंट, WTO इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्वे रिवील्स AI यूजेज। जो AI का यूजेज है वो कंपैरेटिवली कम है कौन सी एंटरप्राइजेस के अंदर, जो कि स्मॉल फर्म्स हैं, राइट? सो बेसिकली विद ओनली 41% अडॉप्शन इन द स्मॉल फर्म्स एंड 60% ऑफ द लार्ज फर्म्स रिपोर्ट यूजिंग AI टूल्स। तो वो AI टूल्स को यूज करती हैं, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? To this question, right answer is option E, that is 1, 2, 3 and 4. Absolutely, everybody has given the right answer. To the question on the World Trade Report 2025, everybody has given the right answer, that all these statements are correct here. Guys, let me tell you, जो ये data मैंने mark किया आपके लिए, these are the most important dimensions on which a question can be framed from this report in the exam. So make sure कीजिए that if you have not covered this report, at least you are covering these dimensions that we have noted down, because it covers the most important dimensions on which a question can be asked from this report. Okay, absolutely. Let's move on to the next report. Now the next report is on the Controller and Auditor General of India's decadal report. So एक decadal report निकाली है Controller and Auditor General ने for the fiscal health of the states. So दोस्तों, जब भी हम अपने लिए कुछ प्लान करते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ बेहतर करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? अपनी पॉकेट देखते हैं, है ना, कि हमारी पॉकेट के अंदर कितना पैसा है ना, हाउ मच मनी दैट वी आर हैविंग, बिकॉज दिस इज आर द फिस्कल हेल्थ। ये हमारी फिस्कल हेल्थ है कि हमारे पास कितना पैसा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन द स्टेट इज प्लानिंग टू डू सम वेलफेयर इनिशिएटिव्स फॉर इट्स पॉपुलेशन, इट्स फिस्कल हेल्थ शुड बी गुड, क्योंकि जो भी वेलफेयर इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। उसी चीज को एनालाइज करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डेकेडल रिपोर्ट की लास्ट पूरे 1 डेकेड के अंदर फिस्कल हेल्थ कैसी थी स्टेट्स की। तो उसी के ऊपर ये डेटा आपको दिया गया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो यहां पर हमें क्या पता चलेगा कि किस स्टेट के पास कितना डेट है, किसकी डेट टू जीडीपी रेशियो कैसी है। सो ये सारी चीजों को हम इस क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करेंगे। सो कंबाइंड पब्लिक डेट ऑफ द 28 स्टेट्स, जो कंबाइंड डेट है सभी स्टेट्स का, वो इंक्रीज हुआ है टू 59.6 लाख करोड़ फ्रॉम 17.56 लाख करोड़। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर दिए गए कीवर्ड्स को एनालाइज कीजिए और बताइए क्या ये कीवर्ड्स करेक्ट हैं और इनकरेक्ट हैं। सो यस, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, ऑल द फैक्ट्स आर क्वाइट गुड। सेकंड स्टेटमेंट इज ओडिशा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेट टू जीएसडीपी रेशियो and Punjab registered the lowest among all states. See guys, whenever you are covering any report, यहां पर जो extremist है, that means the highest and the lowest, ये दोनों चीजें हमें कवर करनी बहुत जरूरी है। और यहां पर आप देखेंगे Odisha has recorded the highest debt to GSDP ratio, but let me tell you, as per the records of Odisha is having the lowest debt to GSDP ratio, and when it comes to Punjab, it is having the highest one. That's why, that means that both these things are being switched with each other. So that makes this statement incorrect. Now the third statement, which state was having the highest revenue surplus in 22-23? तो कौन सी स्टेट के पास highest revenue surplus था? It is उत्तर प्रदेश. So right answer, बिल्कुल third statement is right. हमें identify करना incorrect statement. What is the right answer? So Kavya has given the right answer, that is option D. Option D is the right answer, as only statement 2 is incorrect here. Absolutely right. Well done Kavya. तो जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, please mark +1 in your mark answer sheet, that yes, I have gained +1 mark in this particular session, right? और जिसने नहीं किया दोस्तों, let me tell you here, आपको -0.25 तो मिलेगा ही, साथ में आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगी लर्निंग। ये लर्निंग जिसके लिए सेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, बट उससे पहले लर्निंग बहुत जरूरी है कि कौन सी गलती एग्जाम में नहीं करनी। यहां पर मेरा कौन सा फैक्टर जो इनकरेक्ट हुआ, वो कौन सा डेटा था जो मुझे याद नहीं रहा, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फिगर और फैक्ट और इंफॉर्मेशन विच आई एम नॉट एबल टू रिटेन
So all these things we have to now learn, we have to absorb that, okay, this is something on which I need to work upon, and that is, you know, a real gain from this particular session. Okay, so don't worry, and this, अगर ये learning भी आप यहाँ से नहीं लेकर जाते, then there is no point of attending the session. Let me be very clear to all of you. Okay, so आगे बढ़ते हैं दोस्तों. This is absolutely right. Option D is the right answer. Punjab is having the highest debt to GSDP ratio, and Odisha is registered the lowest among all states. Absolutely right. So यहाँ पर हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया. ओवरऑल डेट अगर हम देखेंगे स्टेट्स का तो 59.6 लाख करोड़ हो चुका है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. उसके बाद डेट टू जीएसडीपी रेशियो में हाईएस्ट और लोएस्ट किसका है? पंजाब इज हैविंग हाईएस्ट, ओडिशा इज हैविंग द लोएस्ट वन. इसके साथ साथ हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस कौन से स्टेट का है? दैट इज उत्तर प्रदेश. बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर. ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू बी कवर्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट. आगे बढ़ते हैं. The next report is the Children in India report. Guys, children is very, very important, right? And they are one of the most vulnerable sections of our society. That's why any report which has been there, and let me tell you that NABARD के एग्जाम में दोस्तों आज से पिछले 3-4 साल में आप देखें तो चिल्ड्रन से रिलेटेड किसी ना किसी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ ही जाता है ना? तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से कवर करना है. चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने. नाउ यू नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and try to identify which statement is correct here. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है चैट बॉक्स के अंदर. तो फटाफट से बताइए, इस डेटा को एनालाइज कीजिए एंड ट्राई टू टेल मी हियर व्हाट इज द राइट आंसर. सी गाइस, चिल्ड्रन इन इंडिया में डिफरेंट फैक्टर्स हम पढ़ते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, लाइक बर्थ रेट कितना है, जेंडर पैरिटी कितनी है, और उसी लाइन पर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है आपके लिए. अब आप बताइए, द बर्थ रेट इन इंडिया कंटिन्यूड इट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड. सबसे पहले कोई भी पैरामीटर हम देखते हैं वो उसका ट्रेंड क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो बर्थ रेट इन इंडिया कंटिन्यूड इट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और यहां बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट बर्थ रेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सबसे हाईएस्ट लोएस्ट वाले अगर कोई भी ऐसा डेटा आता है वो हमेशा एक कहीं ना कहीं खटकता है एग्जामिनर के दिमाग में, और उसी पर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है. सो बिहार हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट एट 25.8 पर 1000 पॉपुलेशन इन 2023, और यहां लोएस्ट कहां पर है? 10.1 इज द वैल्यू फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स. दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स को भी हाईलाइट करती है. सो जेंडर पैरिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा था दोस्तों काफी बार कि मेल्स और फीमेल्स हमारी सोसाइटी के दो पिलर्स हैं, और कोई भी फैसिलिटी अगर मेल को मिलती है और फीमेल को उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मेल इज ऑल्सो हियर, फीमेल इज ऑल्सो हियर, राइट? अगर मेल को ये पर्टिकुलर ये रेंज ऑफ फैसिलिटीज मिलती हैं और फीमेल को यहीं तक की फैसिलिटीज मिलती हैं और उसके ऊपर वाली फैसिलिटीज नहीं मिलती, सो दिस इज कॉल्ड जेंडर गैप, राइट? और ये बताता है कि यहां पर पैरिटी नहीं है, जेंडर पैरिटी इज नॉट देयर, इक्वालिटी इज नॉट देयर. सो ये बताता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट की एजुकेशन में जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना है. It is measured using the gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio हमने नेशनल लेवल पे कितना अचीव किया. So across all the stages with the secondary level हमने आइडेंटिफाई किया जो GPI वैल्यू था वो 1.1 था in 24-25. Now let me tell you here that ये जो जेंडर पैरिटी है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1, राइट? सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी 1.1 पर आ चुकी है. दैट मीन्स here girls are way ahead than boys. So this basically shows this particular data. और आप देख सकते हैं दोस्तों सेकेंडरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में girls have surpassed the boys, and that is absolutely right. This statement is also right. Third statement, proportion of women aged 20 to 24 years before 18 years declined from 26.8% to 23.3%. Is it right or wrong? This is also right. So we need to identify correct statements. Right answer is option E, that is 1, 2 and 3. All the statements are correct here, and I'm really glad to see so Kavya, Sonia, Ravindra, Jack, everybody has given the right answer to this question, guys. Well done everyone, and all of you are really giving me the right answer to all these questions. That's really great to see that you are participating in the session. Your questions that you are answering are already right, so that's really great. Hats off to all of you. Let's move on to the next part, and now we are moving on to those reports which we have already covered in the previous sessions also. But here another, again we will be covering it because they are very important. India Rankings 2025 रिपोर्ट, और उसके ऊपर ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है. पहला स्टेटमेंट,
इसको रिलीज किया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, and it evaluates and rank higher education institutions in India across multiple categories and subject domains. This is absolutely right. Second statement, India rankings 2016 में launch हुई थी and with one category, उसके बाद इसको expand किया गया 9 categories and 8 subject domains में. Is it right or wrong? This is absolutely right. Then National Institutional Ranking Framework जो launch हुआ September 2015 में by the Ministry of Education was used for the 2025 edition. This is also right. So what is the right answer here? We are required to identify the statements which are correct. Right answer is option D, that is 1, 2 and 3. All these statements are correct here. So well done Kavya, Sonia, you have given the right answer to this question. आगे बढ़ते हैं next question. So पहली चीज हमने कवर की releasing body. हमने कवर किया कुछ की डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट की ये किस फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है, किसने रिलीज किया. नाउ कम्स द इंडिकेटर्स और वी कैन से द पैरामीटर्स अक्रॉस व्हिच दिस रिपोर्ट असेसेस the Indian institutions in our country. So what exactly these parameters are? Teaching, learning and resources, research and professional practice, graduation outcome, outreach and inclusivity. Question आपके सामने है कि कौन सा पैरामीटर बिलोंग नहीं करता है. So what is the parameter which does not belong? So basically यहां तो सारे पैरामीटर्स बिलोंग करते हैं. So right answer क्या होगा? देखिए ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकता है यहां पर, ठीक है. So what is the right answer? The right answer is none of the above. कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो बिलोंग नहीं करता. So option E is the right answer. बिल्कुल सही. और यहां देख सकते हैं 5 पैरामीटर्स है हमारे: टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन. बिल्कुल सही जवाब, ठीक है. इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, TRGOP फॉर इंडिया रैंकिंग्स. इंडिया रैंकिंग्स के लिए TRGOP इज द 5 पैरामीटर्स विच आर देयर अक्रॉस विच वी आर असेसिंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस. एब्सोल्युटली राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आगे आने वाले टाइम में दोस्तों रैंकिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट का नाम है इंडिया रैंकिंग्स. तो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पर है, ये सारी चीजें हम करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट, IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन मेंटेन की इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर 7 consecutive years. सेकंड स्टेटमेंट, IISc बेंगलुरु हैज टॉप्ड द रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी फॉर 4 consecutive years. And the third statement, AIIMS New Delhi holds the top position in the medical category for 8th consecutive year. So which of the following statements are correct? That's what we need to identify here. Let's see who will give me the right answer. So बिल्कुल सही जवाब. Here the right answer is option D, that is 1 and 3. Option B that is 1 and 3 is the right answer. Okay. Now let's move ahead to the important rankings guys. अगर हम बात करते हैं टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस कौन से इंडिया रैंकिंग्स रिपोर्ट के अंदर, लेट मी टेल यू. सबसे पहले ओवरऑल कैटेगरीज हमें याद करनी है. उसके बाद इन द डिफरेंट जॉनर्स हमें देखना है कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सी इंस्टीट्यूशन कौन से रैंक पर आता है, ठीक है. सो हियर ऑन द टॉप अगर हम बात करते हैं टॉप 5 इंस्टीट्यूशन, दीज आर MBBD के, जो हमने पहले भी कवर किया है. IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर. दिस इज द राइट आंसर. दीज आर द टॉप 5 परफॉर्मर्स इन द इंडिया रैंकिंग्स 2025 रिपोर्ट. तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है. इसके अलावा व्हेन वी मूव अहेड टू द सब कैटेगरीज लाइक इंस्टीट्यूट्स, सो यहां पर आप देख सकते हैं द यूनिवर्सिटीज. अमंग द यूनिवर्सिटी कैटेगरी IISc बेंगलुरु इज ऑन द टॉप. So IISc Bangalore is on the top in this particular university category also. Apart from that, in the colleges category, Hindu College of Delhi is on the top. And let me tell you also another important point, that Delhi is also that particular city which has dominated the top 10 colleges list of this particular report. ठीक है. तो क्योंकि 10 में से 6 कॉलेज आपके दिल्ली से ही थे. Apart from that, अगर हम बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, तो अगेन IISc Bangalore is on the top. अगर हम बात करें IISc बेंगलुरु की, सो वो ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर है. रिसर्च और रिसर्च कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है. यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट पोजीशन पर है. अगर हम बात करते हैं दोस्तों IIT मद्रास की, IIT मद्रास, तो वो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है, इंजीनियरिंग में टॉप पर है, इनोवेशन में टॉप पर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी के अंदर टॉप पर है. अभी SDG कैटेगरी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया रैंकिंग्स 2025 रिपोर्ट के अंदर. सो एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. सो इस तरीके से हमें कवर करना है. आगे बढ़ेंगे तो SCG कैटेगरी में आप देख सकते हैं टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स MDB, दैट इज IIT मद्रास, दिल्ली एंड बॉम्बे. दीज आर द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, राइट.
in this particular rankings. Now when it comes to the open universities, IGNOU is on the top. अगर हम बात करते हैं दोस्तों फार्मेसी की, सो जब दर्द होता है तो हम कहां जाते हैं? मेडिसिन लेने जाते हैं, फार्मेसिस्ट पर जाते हैं. सो जामिया हमदर्द is the name of the institute which is on the top in terms of pharmacy. ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर. Then innovation में IIT Madras is on the top, skill में Symbiosis Pune is on the top. So dental, law, architecture and agriculture and allied is very important for you. That is Indian Agriculture Research Institute, New Delhi is on the top here. So IRAI is on the top, IRAI New Delhi in terms of agriculture and allied sources, right? So ये आपके नाबार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो एक बार फिर से कवर करेंगे सभी को, फटाफट से जल्दी से कवर करेंगे. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कैटेगरी की, तो यहां पर टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं आप जल्दी बताएंगे. MBBDK, दैट इज IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर. एब्सोल्युटली राइट. अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो कौन है टॉप पर? IISc बेंगलुरु, जो कि ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर आता है. उसके बाद IIT मद्रास की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, IIT मद्रास जो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर टॉप पे था, ओवरऑल में टॉप पे था, रिसर्च इनोवेशन में टॉप पर है, इंजीनियरिंग में टॉप पर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर टॉप पर है. SDG के अंदर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? MDB, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ओपन की, तो IGNOU इज ऑन द टॉप इन द ओपन. अगर हम बात करते हैं स्किल्स की, तो सिम्बायोसिस पुणे इज ऑन द टॉप. अगर हम बात करते हैं फार्मेसी की, तो जामिया हमदर्द इज ऑन द टॉप. कॉलेजेस की रैंकिंग में हिंदू कॉलेज इज ऑन द टॉप. तो इस तरीके से हमें बिना देखे हम सारे रैंकिंग्स को बारी बारी बता सके गाइस. हमें इस तरीके से चीजों को याद करना है. ठीक है, आई होप कि आप सभी इस चीज को समझ पाए होंगे एंड ऑल ऑफ यू विल बी रियली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन एज वेल, राइट. इसके अलावा हमने सारे पैरामीटर्स को याद किया. सो TRGOP, so these are the 5 parameters which we need to remember, on the basis of which all these institutions, universities across the different subjects and domains are being assessed by this report. ठीक है जी, I hope this is clear to everyone. If this is clear, please give me a thumbs up in the chat box that yes, this report is clear to us and we can move on to the next report. So good to see that yes, everybody of you is able to understand it. Now let's move on to the next question. Next question is on the Global Innovation Index. So my dear friends, Global Innovation Index is a very important report here from the exam point of view. Another important report, और आपको identify करना है कौन से statements correct है. See why exactly we are covering this in the statement based manner, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप देखेंगे बहुत ही लंबा एग्जाम होगा, लेंथी पेपर होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, so this is the platform where you can practice quality questions, good questions which can be asked in the exam. So here there are 3 statements before all of you. You are required to identify which of the following statements are correct here. So बार बार मैं आपको 3 स्टेप्स नहीं बताऊंगा, काफी बार रिपीट कर चुके हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 स्टेप्स हैं. सेंट्रल टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया, डिमांड कर ली, अब कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे. ठीक है, पहला स्टेटमेंट, Global Innovation Index is based on the 2 distinct sub-indices, that is innovation input and innovation output. Collectively utilizes 78 indicators to assess the innovation ecosystems. Second statement, sub-index is organized into 5 separate pillars that evaluates the tangible results of innovation activities within the economy. एक annual publication है which is released by World Intellectual Property Organization covering performance of the economies worldwide. So what do you think? Which of the following statements are right here? People are saying option C is the right answer. Is option C is the right answer or not? This is absolutely right. Option C is the right answer. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. So Global Innovation Index consider the following statements, identify the correct statement here. अब दोस्तों अगला पार्ट आता है हमारे नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर, दैट इज इंडियाज पोजीशन. तो सबसे पहले हमने उसकी डायमेंशंस, आपकी क्या क्या पिलर्स हैं और साथ में रिलीजिंग बॉडी को कवर किया. अब आती है इंडिया के परफॉर्मेंस और टॉप परफॉर्मर्स. सो यहां पर आते हैं इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन द GII इंप्रूव फ्रॉम 39 to 38, राइट, विच इज अ ग्रेजुअल राइज ओवर द ईयर. Second statement, India represented by total of 5 major innovation clusters. तो टोटल 5 क्लस्टर्स थे इंडिया के इन द वर्ल्ड्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 क्लस्टर्स.
शेंजन, हांगकांग, ग्वांगजू टॉप द GII 100 इनोवेशन क्लस्टर रैंकिंग। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं क्लस्टर्स की तो SHG, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, शेंजन, हांगकांग, ग्वांगजू, SHG विच हैज टॉप्ड इन द क्लस्टर्स लिस्ट। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर एक क्लस्टर्स की रैंकिंग भी दी गई, जहां पर इंडिया के 5 नहीं बल्कि 4 क्लस्टर थे, और 4 क्लस्टर के साथ इंडिया वाज प्लेस्ड ऑन द 4th पोजीशन विद यूनाइटेड किंगडम। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, सॉरी इनकरेक्ट। सो राइट आंसर इज, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। और हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों व्हाई एग्जैक्टली दिस इज द राइट पार्ट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच आर द टॉप 5 rankers, which country does not belong to the top 5 rankers in the global innovation index? Guys, Switzerland, Sweden, Republic of Korea, Japan, Singapore and Japan। आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी कंट्री है जो कि टॉप 5 में नहीं आती। क्विकली गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। So top 5 performers are really very important. Bottom performer is important. India's rank is important. India की रैंक हम देख चुके हैं 38 है, राइट। अब टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन से हैं? So basically यहां पर जापान is not one of the top 5 performer. The top 5 performers are, just remember, SSUKS, that is Switzerland, Sweden, USA, Korea, Singapore। तो जब भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात आएगी, जस्ट रिमेंबर SSUKS। ठीक है, इस तरीके से आप टॉप 5 परफॉर्मर्स को याद कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की रैंक 39 थी लास्ट ईयर, इस साल 38.2 स्कोर के साथ 38th पोजीशन पर इंडिया रिलाई करता है। ठीक है, और क्लस्टर्स रैंकिंग में विच क्लस्टर इज ऑन द टॉप? सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG इज ऑन द टॉप। शेंगजन, हांगकांग एंड ग्वांगजू, एब्सोल्युटली राइट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्लस्टर्स की रैंकिंग है, मैंने आपको बताया कि इंडिया के टोटल 4 क्लस्टर थे और इंडिया यूनाइटेड किंगडम के साथ 4th पोजीशन पर था। 4 क्लस्टर के साथ 4थी पोजीशन पर था इंडिया। अगर हम यहां इस लिस्ट में बात करेंगे तो 100 क्लस्टर्स में से सबसे ज्यादा क्लस्टर्स कौन सी कंट्री के थे? दे आर ऑफ चाइना। तो चाइना इज ऑन द टॉप देयर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने कवर कर लिया है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट गाइस बहुत ही इजी है, आपको बताना है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, which major port ranked first among India's busiest ports by the cargo handled for June 2025? सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट में कौन सा पोर्ट आता है? दीनदयाल, कांडला गुजरात, जवाहरलाल नेहरू, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता और पैराडिप ऑफ ओडिशा। व्हाट इज द राइट आंसर? सो हियर एग्जैक्टली इट इज ऑप्शन ई, दैट इज पैराडिप ओडिशा। आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो दीज आर द टॉप 5 busiest ports which are there in our country. Paradip is on the top with 18.04% of the total load. Then Deen Dayal, JNPA, Visakhapatnam, Shyam Prasad Mukherjee port. So this is the right answer. Okay. So Ministry of Port, Shipping and Waterways ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था and we have covered here about this. Absolutely right. So good to see here that all of you are giving the right answers guys, and really that's great to see from here as well that आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से दे पा रहे हैं। That shows your dedication and commitment towards becoming the next NABARD Grade A officer. That's really great to see. आगे बढ़ते हैं। So next report is from the World Talent Rankings 2025 released by Institute for Management Development. ठीक है जी। अब दोस्तों ये रिपोर्ट हमें आइडेंटिफाई कर बताती है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यूज में कितना हम बेहतर है, हमारी कंट्री बेहतर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स, राइट? एंड हियर वी आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो पहला स्टेटमेंट है, द रैंकिंग इवैल्यूएट्स कॉम्पिटेंसेस फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू 3 थिंग्स, दैट इज ग्रोथ, रिटेंशन एंड अट्रैक्शन। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों। मान लीजिए आप अभी इंडिया में रहते हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप नाबार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट? सो आपकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट इज थिंकिंग like it is giving you the jobs. Second thing is retention. आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बाहर कितने भी अच्छी, आउटसाइड इंडिया कितने भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, बट आप इंडिया के अंदर ही रहे और यहाँ पे काम करें। तीसरी चीज, जो बाहर का टैलेंट है उसको भी इंडिया के अंदर ले आए। तो ये है अट्रैक्शन। तो ग्रोथ, रिटेंशन एंड अट्रैक्शन, दीज आर द 3 pillars across which this report assesses the economies. Okay, I hope this is clear.
Moving to the second part, Switzerland has secured the top position for the 10th consecutive year with a score of 100. Third statement, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की रैंक है 63 while श्रीलंका was placed at the bottom at the 69th position. So which of the following statements are incorrect? That's what we need to identify. ठीक है, तो incorrect कौन सी है जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर. So Sarkar is saying option E, Kavya is saying option A, that is 1 and 2. Let's see what is the right answer. Right answer is option D, that is statement only 3. See guys, हमें identify करना था कौन सी statement incorrect है, ना कि करेक्ट. आप जिन्होंने ऑप्शन ए दिया 1 एंड 2 तो वो करेक्ट वाला आंसर दिया. हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होते हुए भी अगर हम गलत मार्क कर दे, दैट मींस वी आर नॉट क्लियर कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, राइट. तो डिमांड को समझना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग यू टू जस्ट मार्क दिस पार्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई. सो वी आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, right? And here the right answer is option D, that is third statement. Why? Because Sri Lanka is not at the bottom, it is Mongolia which is at the bottom on the 69th position. So yes, Sonia, Kavya and Prakshi, all the people have given the right answer as option D. Well done guys. ठीक है, तो इस रिपोर्ट को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर किया है दोस्तों, और अगर आपने इस सेशन को मिस किया था तो आप डेफिनेटली जब आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे इस सेशन को, एंश्योर करना कि आप इस लिंक पर आएं. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर सेशन वेयर वी हैव डिस्कस्ड दिस रिपोर्ट इन अ डिटेल्ड मैनर. ओके, होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट रिपोर्ट इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025. वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर करेक्ट स्टेटमेंट्स. सी अगेन आई विल बी फोकसिंग ऑन द डिमांड. करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट्स को फोकस करना है. तो हमें पूरे स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट, रिलीज बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तो दोस्तों ये एयर क्वालिटी बहुत जरूरी है हमारे लिए. ठीक है, एयर क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी थ्रू आउट द डे वी इनहेल एंड एक्सहेल, राइट. इफ दिस एयर इज नॉट गुड देन डेफिनेटली वी विल गेट सिक. सो बेसिकली वी नीड सम एपिक work in order to understand that how this air quality is impacting us. So this work has been done by EPIC organization, that is Energy Policy Institute at the University of Chicago. Okay. Second statement, according to the report, toxic air reduces the life expectancy. So हम लोग काफी डिजीजेस की तरफ भागते हैं कि इतने सारे डिजीजेस हैं जो हमें इंपैक्ट कर रही हैं, कैंसर है, कहीं डायबिटीज है, बट व्हाट अबाउट द एयर दैट वी आर इनहेलिंग. लेट मी टेल यू दैट अगर हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं सो वहां पर आपकी एयर क्वालिटी, द टॉक्सिक एयर इज बेसिकली डैमेजिंग योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यू कैन सी हियर दैट इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑन एवरेज 3.5 इयर्स तक डैमेज कर रहा है. वाइल अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन इज ओनली डैमेजिंग इट बाय 1.6 years. इट इज रिड्यूसिंग इट बाय 1.6 years, बट टॉक्सिक एयर इज रिड्यूसिंग इट बाय 3.5 years. So this statement is also right. Third statement, Southern India is the most polluted region on the earth. On the earth, which is the most polluted region. So basically this is one of the extreme statement. So is it right or wrong? Is Southern India is the most polluted region? Answer is no. It is the North India which is the most polluted region. So yes, statement 3 is incorrect here. We were required to identify correct statements. Here right, option A will be the right answer. Absolutely right. So जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को मार्क किया गया, प्लीज मार्क +1 इन योर आंसर शीट्स. ओके, और बाकी के लिए एक लर्निंग रहेगी कि कौन सा डेटा हमें याद नहीं था, ये हमें अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माल न्यूट्रिशन रिड्यूसेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 1.6 years, टोबैको यूज बाय 1.5 years, अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन बाय जस्ट 8.4 months. तो यहाँ पर हम इन पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दोस्तों कि हम बेसिक necessity को भूल गए, that is air that you, me and all the people around us are inhaling and exhaling throughout the day. Okay, moving ahead, North India हमारा most polluted region है, Delhi NCR worst hit area है, और बिहार, हरियाणा, यूपी are the most impacted area जहां पर life expectancy आप देख सकते हैं reduced by 5.6 years, 5.3 and 5 years respectively due to the toxic air. That's what the key findings of the report. Let's move on to the next report, that is logistic cost in India. The assessment of logistic costs in India. See guys, you must have seen that recently when different e-commerce websites have announced the sale, right? So उस time पर you must have ordered so many things for your own, right? तो अपने लिए आप सबने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ऑर्डर किया होगा.
लाइक अगर अमेजोन की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि अमेजोन गिफ्ट्स, अगर आप प्राइम कस्टमर है तो विद इन 24 आवर्स आपको डिलीवरी मिलती है। और इस बार फ्लिपकार्ट ने कंपटीशन देने के लिए मिनट्स को लॉन्च किया। सो गाइस, बट कैसे हो रहा है ये सब? क्या कंपनीज को कितना सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है? लॉजिस्टिक मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और प्रोडक्ट को फाइनली डिलीवर करना, ठीक है। तो ये कितना इंपैक्टफुल है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया सितंबर 2025 रिपोर्ट। एंड हियर वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले की स्टडी को कंडक्ट किसने किया? इट वाज कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया की एग्रीगेट लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है? 24.01 लाख करोड़ है, बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करें इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी और द नॉन सर्विसेज आउटपुट, तो वो क्या होगा? तो नॉन लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की जीडीपी के मामले में 9.09% है और 7.97% है फॉर द नॉन सर्विसेज आउटपुट। इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? दिस इज नॉट राइट। व्हाई? बिकॉज वी हैव स्विच्ड द वैल्यूज हियर। सो द राइट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन 3 ओनली, बिकॉज वी वर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहां पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि किसी ने ऑप्शन ए को आंसर नहीं दिया होगा, ऑप्शन ई को ही सबने मार्क किया होगा। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी। सो यस, प्राची, काव्या, सोनिया, एवरीबडी हैज गिवन ऑप्शन ई एज द राइट आंसर। वेल डन गाइस। So this shows that yes, now finally you are getting that clarity, okay, what exactly is the right question is and how we are required to identify the right answer to that right question to avail those positive marks that we can by our knowledge, but we were not getting it earlier because we were not clear with the how exactly we are required to solve these questions, okay? तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Sovereign rating review released by the Rating and Investment Information INC, what is India's upgraded long-term sovereign rate credit rating? तो इंडिया की अपग्रेडेड लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? देखिए, जब हम कभी लोन लेने जाते हैं तो बेसिकली हमसे सिबिल स्कोर पूछा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, क्योंकि वो बताता है हमारी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कि हमारा कैसा इंटेंट है। अगर हम लोन लेते हैं तो क्या हम उसको टाइमली पे करते हैं, आर वी कैपेबल टू पे बैक द लोन। सो ये सब चीजें एक इंडिविजुअल के लिए सिबिल स्कोर बताता है, बट फॉर द कंट्री लेवल इट इज अ सोवरेन क्रेडिट रेटिंग which is being given by these institutions। तो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इस बार कितनी हुई? इंडिया की क्रेडिट रेटिंग हुई BBB पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर BBB पॉजिटिव क्यों इंडिया की रेटिंग को किया गया? क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और साथ में हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दोस्तों वो भी बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए ये रेटिंग इंडिया को दी गई है। एंड आई कैन सी हियर एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर एज ऑप्शन डी। दैट्स रियली गुड टू सी। So Krishna, Sonia, Kavya, everybody has given the right answer. Sarkar has given the right answer. Absolutely right. आगे बढ़ते हैं। With reference to the time 100 AI list 2025, which of the following does not belong? Does not belong, guys. Belong करते हैं नहीं, जो नहीं करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। Does not belong to the 6 people from the Indian subcontinent and diaspora featured in the report. तो time 100 artificial intelligence list की अंदर वो इंडियन 6 इंडियन लोग जो इस सबकॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, उसका नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर। सो रवि कुमार, मैत्रा, रघु, नवरीना सिंह, प्रिया दोंती, मितेश खापरा, अभिषेक सिंह। So let me tell you here that all these people are the part of the list and that's why the right answer is option E, that is none of the above. Because हमें क्वेश्चन में पूछा गया था does not belong but all of them belongs, so option E is the right answer. Absolutely right. I hope this question is clear to everyone. Let's move on to the next question. Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025 was released. So which state recorded the highest number of millionaire households? As of June 2025, वो कौन सी स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा मिलियनियर हाउसहोल्ड्स रहे? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलियनियर हाउसहोल्ड्स गाइस. So which particular state is having the maximum number of such households? It is Maharashtra. महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं स्टेट्स में महाराष्ट्र इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। अगर सिटीज की हम बात करेंगे तो हियर मुंबई इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड कोलकाता। सो दीज आर द टॉप 5 cities in this particular list and the states according to this list. बिल्कुल सही, ऑप्शन ई महाराष्ट्र इज द राइट आंसर।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज ऑन द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन। गाइस सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024, जहां पर सेलिब्रिटीज जो हैं, जो वेल रिनोन्ड पीपल हैं अक्रॉस द कंट्री, सो वो उनकी क्या रैंक है, उनकी कैसी ब्रांड वैल्यूएशन है, इसके बारे में बात की गई। आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस टॉप 5 लिस्ट। कौन बिलोंग नहीं करता टॉप 5 लिस्ट से? विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर सभी बिलोंग करते हैं। सो अगेन ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन गिविंग यू द नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि काफी बार हमें ऐसा होता है पेपर में कि एक क्वेश्चन आया नन ऑफ द अबव, मान लो अगले क्वेश्चन में भी गए तो लगा कि नन ऑफ द अबव लग रहा है आंसर, बट क्या एग्जामिनर इतना पागल है कि वो लगातार 2 क्वेश्चन का नन ऑफ द अबव आंसर देगा? तो ये सिचुएशन आपके एग्जाम में भी आ सकती है। दिस इज द रियलिटी। सो लेट मी टेल यू हियर, just always have a belief in your preparation, in your knowledge that you are having, right? So this is something, a learning that we can take. Do you agree with me? If yes, please give me a thumbs up in the chat box that yes, we are able to understand it and we will be able to, follow it in the upcoming part of the examination. Bilkul sahi. Guys, so with this, we are just done with all the important reports of the September 2025, and I believe that all of you have really enjoyed the today's session. And let me tell you another important point, that you are now required to revise the session. Just इस सेशन को देखना ही काफी नहीं है, इसकी रिवीजन करना भी जरूरी है, ठीक है? और यहाँ दोस्तों आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो यू आर हैविंग द Telegram channel link. Just click on it. Within 24 hours, you will get the PDF in that Telegram channel, right? Within 24 hours, right? So I have seen so many times that students just start commenting that, okay, sir, this PDF is not there, right? So please wait for the 24 hours. You will get the PDF in the Telegram channel. Now, guys, that was all from the today's session. If you are having any queries, please feel free to ask your queries in the chat box. अपनी queries आप chat box में बता सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं अगर अभी कोई क्वेरीज नहीं है तो। बट लेट मी टेल यू हियर, हमें इंश्योर करना है कि हम सिर्फ चीजों को कवर नहीं करें। सी गाइस, आपकी ये जो जर्नी है नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनने की, तो एक गलती जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना करे। वो गलती ये है कि हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं कि मैं 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लूंगा, मैं 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ लूंगा, राइट? बट रिविजन पर फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार एक बार मैंने कर तो लिया ही है, तो पेपर में मैं देख के कहीं ना कहीं आंसर तो निकाल ही लूंगा। लेट मी टेल यू हियर दैट पेपर के अंदर ऐसा ही डेटा दिया जाएगा कि वो आपने पढ़ा होगा, और वह बाइफरकेट करना इतना मुश्किल होगा कि यू विल एंड अप मार्किंग आंसर्स इनकरेक्टली इन द एग्जाम। इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और अपनी रिटेंशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगी? बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कीजिए, और कम पढ़ते हैं तो यहां हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है? इन एमसीक्यूज का पूरा फायदा उठाइए, दे आर रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो आई कैन सी हियर इन द चैट बॉक्स दैट देयर आर नो मोर क्वेरीज हियर, एंड गाइस नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। इट वाज रियली ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर इन दिस सेशन फॉर टेकिंग योर टाइम, and definitely I believe that this session must have been very useful for all of you, because आपका दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर योर अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। सो मेक श्योर कीजिए कि पहले इन 3 महीनों पर अच्छे से फोकस कीजिए, उसके बाद आप पिछले मंथ्स पर भी जा सकते हैं, ठीक है? अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।